Click here to subscribe our channel. Do not forget to press the bell icon to get regular updates of free videos. In this class we are going to discuss a previous year question of 2019 semester 1 economics honors. Those students who are doing economics honors from Delhi University. So semester 1 paper of 2019, ठीक है. एग्ज़ाम 20 का अभी ड्यू है ड्यू टू कोविड डिले. तो 19 का क्वेश्चन मैं इस क्लास के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ. 18 और 17 और से पहले वाले क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस्ड है और वो जो कोर्स बैच है, फुल फ्लेजेड बैच है, उसके अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है. सो दिस क्लास विल बेसिकली गिव यू एन आइडिया ऑब्वियसली अबाउट द वेटेज, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ दैट क्वेश्चन, and how much is the percentage of numerical and how much is the percentage of applied question and how much questions are direct questions. So in 2019 the paper instruction was that there were total 6 question given, including 6 question in total, and you are expected to attempt any 5. There was no section and any question was not compulsory, although 17 or 16 तक के जो question थे उसमें question number 1 used to be the compulsory question. So if that trend persists, then 6 question में obviously जो important unit है, that important unit will contain one important unit will be the demand and supply, जिसमें elasticity या demand dead weight loss वगैरह का concept है, including that international trade application part. Second will be the household and third you can say the market. So primarily 3 unit 3 to 4 unit के question पूछे जा रहे हैं. ऑल्दो इंट्रोडक्शन के भी क्वेश्चन होंगे बट वो क्वेश्चन में डिस्कस अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द परसेंटेज. सो इफ वी कैन स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड है साइट पे, वहाँ से आप एक क्लियर जेरोक्स लेकर के अपने पास रखेंगे. ये इसकी क्वालिटी ब्लड है बट फर्स्ट क्वेश्चन वहाँ पे जो अपलोडेड होगा वो टाइप क्वेश्चन होंगे. ठीक है, तो यू कैन रीड फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट. देयर आर 3 पार्ट ए बी एंड सी. तो 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का. फर्स्ट क्वेश्चन, यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एन एफिशिएंट आउटकम. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रेट लाइन एंड कॉनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. ठीक है, क्वेश्चन यूज द कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पीपीएफ टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एफिशिएंट आउटकम. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड कॉनकेव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर. Now in this type of question what you will do that you can start by defining what do you mean by production possibility frontier. So exactly what does production possibility frontier represent? So you can simply say that it represents various combination of goods that an economy can produce by using the available resources fully and efficiently. ठीक है, remember score करने के लिए you have to be very accurate और exact definition देना है. ठीक है, नोट्स वाले सेक्शन में ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ से आप एग्जैक्ट डेफिनेशन कॉपी कर सकते हैं. सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर रिप्रेजेंट वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स. सो ऑब्वियसली देयर आर सपोज इकॉनमी हैज रिसोर्स एंड दैट रिसोर्स कैन बी यूज फॉर प्रोड्यूसिंग क्लॉथ एंड फूड. सो देयर कैन बी वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉथ एंड फूड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज फुल्ली एंड एफिशिएंटली. Now that production possibility frontier may be a straight line or it can be concave. एक्सेस की मार्किंग और स्केल वगैरह यूज करेंगे आंसर लिखते समय. So if it is a straight line that means opportunity cost is constant because opportunity cost is slope of this line. So if opportunity cost is constant, that means slope is constant, therefore line will be straight. And if it is concave, it means opportunity cost is rising. ठीक है, क्लियर डिफरेंस यहाँ मेंशन कर दीजिएगा. If it is straight line then opportunity cost is constant. If it is concave then opportunity cost is rising. Usually it will be a straight line when there is only one resource. So if suppose for example labor is the only resource that is being used
for producing cloth and food. Then if labor is the only resource, if there will be a single factor of production, then it will be a straight line. But if there are two factor of production like labor and capital, both are used for producing cloth and food, then it will be concave to origin. So one important part, define that term, and the second part, explain the concept of efficient outcome. So when resources are used efficiently, then you are on production possibility frontier. Just for example, suppose I take one point inside. So inside this point will be showing one combination of food and cloth. If I move from M point towards N point, then economy is able to produce more of cloth without sacrificing food, which means allocation of resource at point M was not efficient. So any point inside PPF is inefficient, and every point on PPF will be efficient. तो किसी एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हो, मूवमेंट टू M to N और मूवमेंट फ्रॉम M to R or movement from M to anywhere between R and N. If you move from N to anywhere in between R and N, production of both goods will increase. So define that term PPF accurately. It can be a straight line if opportunity cost is constant, and opportunity cost will be constant if there is only one factor production. It will be concave to origin when opportunity cost is rising, and it will be concave to origin when more than one resource is there. So labor, capital or any other resource. 5 marks के क्वेश्चन में हार्डली 2 or 3 पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ इंक्लूडिंग डायग्राम आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है. देन द सेकेंड क्वेश्चन, फर्स्ट बी, it says using indifference curve analysis, the impact of a change in price of a normal good on its consumption using substitution and income effect. Change in price of a normal good. So using indifference curve analysis, explain the impact of change in price of a normal good. So if you take two product, again you can write it here, good X or good Y, or good 1 or good 2, or any example you can also take. So if this is a budget constraint, on that budget constraint optimal choice is determined by tangency of indifference curve on budget line. That will determine the quantity of X consumer is consuming and the quantity of Y that consumer is consuming. Now question says if there is a change in price, now change can be increasing or decreasing. So suppose price of good X decreases, then there will be change in quantity demanded of X, and it will be because of two reasons, substitution effect, income effect. Explain this substitution income effect, ठीक है, वो सेंटेंस में पहले उसको एक्सप्लेन भी कर देना. What do you mean by substitution effect? So substitution effect actually refers to what? Change in quantity demanded due to change in relative price, keeping purchasing power constant. And income effect is change in quantity demanded due to change in real income, keeping relative prices constant. So substitution effect arises because of change in relative price. Income effect arises because of change in the purchasing power. तो प्राइस अगर डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के बाद की फाइनल लाइन ही होगी. अब यहाँ भी सेपरेट करते समय याद रखेंगे देयर आर टू सेपरेट अप्रोच. एक अप्रोच जो यूजुअली आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज हिक्सन अप्रोच. सो दैट इन दैट हिक्सन अप्रोच वी कीप यूटिलिटी कांस्टेंट. तो जो ओरिजिनल लाइन है प्राइस चेंज करने पे दो इफेक्ट होंगे. सेपरेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल you rotate that line. Now it can be steeper or flatter depending upon whether you reduce the price or increase the price. So if you reduce it, you have to draw a flatter line. If it is tangent on same indifference curve, then you are following that Hicksian approach. So you move from say point E1 to point E2. So demand for good good X increases from X1 to X2. This is substitution effect. So substitution effect is same for normal good, inferior good or for given good. What is difference distinguishing will be the income effect. तो इन दोनों में आपने रिलेटिव प्राइस डिफरेंट ले लिया. इस डॉटेड लाइन के पैरेलल ये फाइनल लाइन है. दैट मीन्स रिलेटिव प्राइस इज सेम. सो इफ रिलेटिव प्राइस इज सेम दैट मीन्स there will be no substitution effect. Now there will be only income effect. And as you move from left to right,
income increases, and since question says it is normal good, so demand for X and Y both will increase. So third point must be diagonally to E2. ठीक है, यहाँ से मार्क करके X3 लिख दिया, ये इनकम इफेक्ट एंड द ओवरऑल विल बी द प्राइस इफेक्ट. तो डायग्राम क्लियर बनाना है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट को डिफाइन कर दीजिएगा. दैट्स डिफाइंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इनकम इफेक्ट एंड द सम ऑफ दीज टू विल बी द प्राइस इफेक्ट एंड एक्सप्लेन दिस डायग्राम ब्रीफली. ठीक है, 5 बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 5 है. दैट मीन्स इन टोटल यू हैव टू अटेम्प्ट अराउंड 25 क्वेश्चन, और उसके अंदर भी सब पार्ट्स होते हैं. सो अराउंड 25, सो देयर टाइम विल बी अ मेजर कंस्ट्रेंट देयर. तो बहुत इलेबोरेट नहीं करना है, एग्जैक्ट होना है. नाउ दैट थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट सी इज अ न्यूमेरिकल. ठीक है, वो 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए और ये थर्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है. इसमें डिमांड फंक्शन गिवन है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू ए पी टू द पावर माइनस बी, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट नंबर. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा होता q इक्वल टू 2p टू द पावर माइनस 3. ठीक है, नाउ ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है. शो दैट प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड फॉर दिस डिमांड कर्व इज माइनस बी एट ऑल पॉइंट ऑन डिमांड कर्व. मतलब इस डिमांड फंक्शन की इलास्टिसिटी माइनस बी आएगी, ये आपको शो करना है. ना शो करने के लिए डिमांड फंक्शन जब कभी गिवन हो, फर्स्ट थिंग डिफरेंशिएट दैट फंक्शन डी क्यू बाई डी पी विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस. प्राइस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा. ए और बी याद रखिए कॉन्स्टेंट नंबर है, तो पावर या माइनस बी है, सो इट विल बी माइनस बी ए पी टू द पावर माइनस बी माइनस 1. ठीक है, और फिर इलास्टिसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करना है. रिमेंबर इलास्टिसिटी में आप फॉर्मूले के अंदर माइनस साइन यूज़ कर भी सकते हो. अगर माइनस साइन यूज़ करते हैं फॉर्मूले में तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव नहीं आएगा. माइनस साइन अगर यूज़ नहीं करते हैं उस कंडीशन में जो फाइनल आउटकम आएगा वो नेगेटिव होगा. तो अगर फॉर्मूले के अंदर जो मतलब इलास्टिसिटी अगर हमने सिर्फ लिखा डी क्यू बाई डी पी इंटू पी बाई क्यू, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा. सिंस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको शो करना है इलास्टिसिटी डिमांड माइनस बी आना है, तो बेटर नॉट टू यूज़ इट. सो डी क्यू बाई डी पी की जगह ये टर्म लिख देंगे माइनस बी ए पी टू द पावर माइनस बी माइनस 1. दिस इज इन प्लेस ऑफ दिस, और इन प्लेस ऑफ पी बाई क्यू, पी बाई क्यू, क्यू की जगह ये इंटायर डिमांड फंक्शन लिख रहे हैं ए पी टू द पावर माइनस बी. ठीक है, अब जो टर्म यहाँ कैंसिल हो जाएगा वो ए कैंसिल हो गया, पी टू द पावर माइनस बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और p टू द पावर माइनस 1 है, मतलब 1 अपॉन पी हो गया, तो p भी कैंसिल हो गया. सो ओवरऑल जस्ट माइनस p. ठीक है, ये p टू द पावर माइनस 1 है और यहाँ p है, सो 1 बाई पी इंटू पी. p विल कैंसिल आउट, इलास्टिसिटी डिमांड विल बी माइनस b. ये एक पार्ट है, मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर 2-3 पार्ट्स बनाए गए हैं फर्दर. तो एक पार्ट में आपने ये पहले शो कर दिया मैथमेटिकली. सेकेंड पार्ट कह रहा है write the equation of total expenditure curve. So you know that total expenditure curve equation लिखना है, कुछ कैलकुलेशन नहीं है. So total expenditure is equal to what? Price multiplied by quantity. तो P into Q लिखना है, तो Q की जगह ये फंक्शन सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा. क्वांटिटी की जगह आपने ये लिख दिया, तो टोटल एक्सपेंडिचर एज अ फंक्शन ऑफ प्राइस आ जाएगा. ठीक है, थर्ड में कह रहे हैं सपोज b इज 2, मतलब b की वैल्यू अगर 2 है, देन विल द टोटल एक्सपेंडिचर राइज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस. रिमेंबर b की वैल्यू 2 आने का मतलब है हमने अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, दैट मीन्स इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 हो गई. ठीक है, इलास्टिसिटी की वैल्यू 2 है, तो जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है तो प्राइस एंड एक्सपेंडिचर बोथ विल चेंज इन दी अपोजिट डायरेक्शन. वो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के कंसेप्ट को अप्लाई करना है. तो सिंस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, देन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर विल चेंज इन दी अपोजिट डायरेक्शन. सो क्वेश्चन इज will total expenditure rise when price increases? So when price will increase, total expenditure will
fall. तो क्वेश्चन था will total expenditure rise, then answer will be no, total expenditure will not rise, total expenditure will fall because elasticity or demand is greater than 1. अब वहाँ पे b की वैल्यू 2 लिखा हो 3 लिखा हो does not matter. ठीक है, तो ये फर्स्ट में आपको डिराइव करना है, सेकंड में टोटल एक्सपेंडिचर का इक्वेशन लिखना है, और थर्ड में टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के कंसेप्ट का एप्लीकेशन हो गया कि वेदर यू नो दैट कंसेप्ट और नॉट, कि इफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 देन व्हाट विल हैपन. सो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन. इसके ये 3 पार्ट थे. ठीक है, नाउ वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. हर क्वेश्चन में ऐसे ही कॉम्बिनेशन होता है जनरली. 1-2 क्वेश्चन आपको कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए होगा, मतलब वहाँ कैलकुलेशन नहीं है, एनालिटिकल है, एक्सप्लेन करना है, और एक सेक्शन होगा जो न्यूमेरिकल होगा. तो यूजुअली वो हर क्वेश्चन के अंदर पैटर्न सिमिलर है. सो क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग 2019 पेपर. Again this question has 3 parts. First is discuss the effect of price floor imposed by government in the labor market. Discuss the effect of a price floor imposed by government in the labor market. ठीक है, रिमेंबर क्वेश्चन रीडिंग के अंदर मैनक्यू में जो एक्सप्लेन किया जा रहा है वो प्राइस फ्लोर का ज़्यादातर एग्जांपल गुड्स के कंटेक्स्ट में, बट ये लेबर मार्केट के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन करना है. तो यू कैन स्टार्ट विथ डेफिनेशन ऑफ प्राइस फ्लोर. इन पर जो कीवर्ड यूज हो रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, ट्राई टू डिफाइन दैट. ठीक है, मतलब यू कैन स्टार्ट योर आंसर विद दैट. दैट प्राइस फ्लोर रेफर्स टू व्हाट? प्राइस फ्लोर इज द लीगल minimum below which market price cannot fall. So it is a legal minimum. So since price floor is legal minimum, and then example is a minimum wage और मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, बट यहाँ लेबर मार्केट के कंटेक्स्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं. सो यू कैन डिटरमाइन डिमांड फॉर लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, दिस विल बी द फ्री मार्केट क्लियरिंग वेज. ये कॉम्पिटिटिव वेज हो गया. प्राइस फ्लोर गवर्नमेंट ने लेबर मार्केट में लगा रखा है. तो रिमेंबर मिनिमम वेज विल बी बाइंडिंग ओनली व्हेन इट इज इम्पोज्ड अबव इट. तो अगर ये फ्री मार्केट क्लियरिंग वेज है तो गवर्नमेंट का मिनिमम वेज ये होगा, मतलब लीगली वेज कैन नॉट बी लोअर देन दिस. सो व्हाट विल बी द आउटकम? एट दैट लीगल मिनिमम वेज डिमांड फॉर लेबर विल बी लेस, सप्लाई ऑफ लेबर विल बी मोर, सो दैट गैप विल बी अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, डिमांड फॉर लेबर विल बी लेस, सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर, देयरफॉर देयर विल बी unemployment in the labor market. So you have to discuss the effect of that. So what is the effect? Explain price floor, use this diagram, explain the diagram briefly, and explain this gap, that due to this minimum wage, since it is above the market clearing wage, that means market will not clear. So when market will not clear, there will be a unemployment. So first part के अंदर ये explain करना है. सेकेंड इज फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड सेक्शन. जो सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन है सारे, डिमांड सप्लाई वाले जो मेजर यूनिट है. सेकेंड क्वेश्चन के अंदर है, इफ द वर्ल्ड प्राइस ऑफ अ गुड एक्सीड टू बी, यू कैन रेफर. ठीक है, क्वेश्चन आपके पास होगा, वहाँ से रेफर कर सकते हैं. इफ द वर्ल्ड प्राइस ऑफ अ गुड एक्सीड द डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गुड, विल द कंट्री एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट द गुड? फर्स्ट पार्ट इज दैट. इन दिस केस who gains from trade, डोमेस्टिक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर और बोथ? ठीक है, ये क्वेश्चन डिस्कस है, क्लास के अंदर भी है, उसको बस प्रेजेंट आप इस फॉर्म में कर लोगे. सो इफ आई ड्रॉ अ डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व, एक बार ये आर्बिट्ररी होता है, मतलब आप ओरिजिन से स्टार्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर. दिस विल बी द डोमेस्टिक प्राइस. ठीक है, जिस कंट्री के लिए भी आप रेफर कर रहे हैं उसका वो डोमेस्टिक प्राइस है. क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड प्राइस ऑफ अ गुड एक्सीड द डोमेस्टिक प्राइस, सो मार्केट अबव, दिस इज प्राइस इन वर्ल्ड, कैन राइट इट हियर, वर्ल्ड प्राइस. सो आफ्टर ट्रेड द वर्ल्ड प्राइस एंड द डोमेस्टिक प्राइस both will become same. In the absence of trade, domestic price and world price can be different, but after trade
world price is equal to the domestic price. In fact, you can say that domestic price is now equal to the world price. So at that price, demand in economy will be less, supplier will produce more. So since supply is more and demand within the economy is less, so this gap will be export. ठीक है, जब कभी वर्ल्ड प्राइस डोमेस्टिक प्राइस से हायर होगा, कंट्री विल बी एक्सपोर्टर and country tends to import when the world price is lower and the domestic price is higher. So I will prefer to import if international price is lower, but country will prefer to export if international price is higher. अब यहाँ पे आप प्रेफरेबली जैसे मैंने क्यों मैं एक्सप्लेन हो रहा है वैसे आप एक टेबल ड्रॉ कर लें तो ज़्यादा बेटर है, और इसको मार्क कर लीजिएगा एरिया को A B C D. रिमेंबर ये प्राइस होता डोमेस्टिक without trade. So this was, we can say, without trade, and PW will be after trade. Consumer surplus, producer surplus, without trade and after trade. प्रेजेंटेशन के लिए इस फॉर्म का टेबल ड्रॉ करना एसेंशियल है, और you can mark one change because question में पूछा जा रहा है whether consumer will be better off or producer will be better off or both will be better off. So you know the meaning. Without trade, price is P bar. So consumer surplus is area above the price and below the demand curve A and B, and below the price and above supply curve will be the area C. तो ये विदाउट ट्रेड हो गया. ट्रेड के बाद वर्ल्ड प्राइस कंसीडर करना है. सो अबव दिस प्राइस विल बी द ओनली एरिया ए, एंड बिलो दैट प्राइस, सो बिलो दैट प्राइस मीन्स दिस, एंड अबव दिस सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व ये लाइन लेनी है. ठीक है, तो ये एरिया बी डी और सी, बी प्लस सी प्लस डी. सो व्हाट इज द चेंज? चेंज हियर विल बी विदाउट ट्रेड इट वाज ए प्लस बी, आफ्टर ट्रेड इज ओनली ए, सो लॉस ऑफ बी. तो कंज्यूमर के लिए लॉस है, सो कंज्यूमर इज नॉट बेटर ऑफ. प्रोड्यूसर अर्लियर इट वाज ओनली सी, नाउ इट इज बी सी एंड डी, सो इट इज बी प्लस डी. सो लॉस फॉर नेगेटिव फॉर कंज्यूमर, पॉजिटिव फॉर प्रोड्यूसर, एंड व्हाट विल बी द ओवरऑल? ओवरऑल देयर विल बी गेन. लॉस माइनस बी, gain B plus D. So this B will cancel out, the gain will be the area D. So this is the gain from trade. एरिया मार्क कर दिएगा. तो वो प्रेजेंट कर देना ग्राफिकली, इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है और एक्सप्लेन कर दिएगा ब्रीफली. क्लियर? मतलब मिस्टेक नहीं करना. मतलब सेमेस्टर 1 इज बेसिकली इफ एनी स्टूडेंट इज नॉट कमिटिंग एनी मिस्टेक, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी नहीं है. difficulty you will have to face in the subsequent semester 2 onwards, mainly semester 3. ठीक है, यही माइक्रो आपके लिए सेमेस्टर 3 और 4 के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बट सेमेस्टर 1 इंट्रोडक्टरी होता है. तो अनलेस यू आर नॉट कमिटिंग सम मिस्टेक, ठीक है, क्वेश्चन विल बी, इट विल बी वेरी इजी पेपर फॉर यू. बट स्कोर करने के लिए आपको इफेक्टिव होना होगा, मतलब प्रेजेंटेशन को थोड़ा क्लियर रखेंगे और एग्जैक्टनेस पे ध्यान देना. दिस वाज सेकंड. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम द सेम यूनिट, सेकंड सी. एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई अ पर यूनिट टैक्स क्रिएट डेडवेट लॉस इन द मार्केट. कैन डेडवेट लॉस बी अवॉइडेड इफ कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर वॉलंटरली डोनेट द टैक्स अमाउंट and government repeal the tax in the market? ठीक है, read that question carefully. Explain how and why a per unit tax create deadweight loss in market. Can deadweight loss be avoided if consumer and producer voluntarily donate the tax amount and government repeal the tax? मतलब consumer और producer अगर voluntarily tax pay कर दें और गवर्नमेंट टैक्स को रिपील कर दे, मतलब abolish कर दे, तो क्या deadweight loss को avoid कर सकते हैं? The answer lies in the description of deadweight loss. What do you mean by deadweight loss? So deadweight loss refers to what? Decline in total surplus due to taxation. So if total surplus is declining due to tax,
then that decline in total surplus is being referred as deadweight loss. So you can use the diagram of deadweight loss. ठीक है, ये कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है. तो सप्लाई डिमांड इंटरसेक्शन लेना है. दिस विल बी प्राइस विदाउट टैक्स. when tax will be imposed, it will create a gap between buyer price and seller price. Buyer will pay more, seller will receive less. This is area A, B, C, D, E and F. डेडवेट लॉस का ये एरिया है. ठीक है, यहाँ भी आप कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, विदाउट टैक्स एंड विथ टैक्स लिख सकते हैं. तो विदाउट टैक्स में दिस वाज प्राइस विदाउट टैक्स. सो ए, बी एंड सी. कंज्यूमर सरप्लस इज ए प्लस बी प्लस सी. प्रोड्यूसर सरप्लस इज डी प्लस ई प्लस एफ. with tax, price for buyer will be PB, so with tax it will be only A, and for producer it will be only F. ये डायग्राम कई बार यूज किया गया. So how much is the change? Change will be loss for consumer B and C, loss for producer D and E. But what will be government tax revenue? Without tax 0, and after tax it is B and D. So B plus D. Therefore overall deadweight loss is minus C minus E. ठीक है, ये एरिया है. तो ये तो कन्वेंशनल डेडवेट लॉस का पॉइंट हो गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया. सेकंड कह रहा है कैन इट बी अवॉइडेड. कैन वी अवॉइड दिस लॉस बाय रिपीलिंग द टैक्स. सो इफ यू रिपील द टैक्स, consumer will gain this area B and C, producer will gain this area D and E, government will lose this area B and D. So the loss for government is less and the gain for consumer and producer is more. So if they can voluntarily compensate to the government, then even after compensating to the government fully, they will be still be better off. So it can be avoided. ठीक है. So we are discussing it in we are studying economics here in basically a नॉट इन दिस फॉर्म ऑफ नॉर्मेटिव. क्या होना चाहिए, तो नॉर्मेटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात हो रही है कि थियोरेटिकली आपको एक्सप्लेन करना है. मतलब ये रिलेट नहीं करना, कंसेप्ट नहीं बनाना है कि अगर इसको अवॉइड कर सकते हैं देन वाई गवर्नमेंट इज इम्पोजिंग टैक्स. ठीक है, दैट विल बी ऑल टुगेदर अ डिफरेंट एस्पेक्ट. सो वी आर बेसिकली डीलिंग इकोनॉमिक्स इन अ पॉजिटिव मैनर. ये क्वेश्चन रीडिंग के अंदर भी है, थोड़ा सा डिफरेंट करके. आई थिंक चैप्टर नंबर 6 के बैक में सिमिलर क्वेश्चन होंगे वहाँ. So this was question number 2. हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, 5 marks each. Then question number 3 also has 3 parts. First question director is here: the recent drone attack on Saudi Arabia destroyed all facilities and the country's crude oil production is expected to reduce significantly in the short run. दैट मीन्स अगर हमने सऊदी अरेबिया में ऑयल का डिमांड और सप्लाई का बना रखा है और ये प्राइस और क्वांटिटी है. सो ड्यू टू ड्रोन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया इट डिस्ट्रॉयड ऑयल फैसिलिटी, सो प्रोडक्शन विल फॉल, सो सप्लाई का विल इनफैक्ट शिफ्ट टू द लेफ्ट. सो प्राइस ऑफ ऑयल विल इंक्रीज, क्वांटिटी प्रोड्यूस विल फॉल. पहले तो ये करना, एक्सेस की मार्किंग क्लियर करेगा. डिस्कस द इम्पैक्ट on petrol market in the world and subsequently the used car market. So obviously price of petrol will increase. Now as price of petrol will increase, petrol is being used for running the car. So what will be the impact? As the price of petrol will increase, the demand for car will reduce. तो एक डायग्राम आप कार मार्केट के लिए बना सकते हैं, जो यूज कार मार्केट के लिए. डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे शिफ्ट होगा डिमांड, बिकॉज रिलेटेड गुड जो इनपुट है उसका प्राइस अगर चेंज हो रहा है दैट डिमांड फॉर कार विल रिड्यूस. सो डिमांड फॉर कार को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देगा. ठीक है, इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट ग्राफिकली शो कर देना, इम्पैक्ट शो कीजिएगा. और बी पार्ट जो क्वेश्चन का है वो कह रहा है हाउ एंड वाई डज अ फर्म टोटल कॉस्ट कर्व डिफर इन शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन.
हाउ एंड वाई डज अ फर्म्स एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व डिफर इन द शॉर्ट रन एंड इन द लॉन्ग रन? शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को डिफाइन कर दीजिएगा. शॉर्ट रन refers to that period where some factors are fixed, and long run refers to that period when all factors are variable. So your first line should be that. Then total cost include usually fixed cost and variable cost both, but if it is a long run, then in long run all factors are variable, so there will be no fixed cost. Therefore total cost will be equal to only total variable cost. But if it is short run, then due to presence of fixed cost, total cost will include fixed as well as variable. ठीक है, और ये एक्सप्लेन करते आप इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं टोटल के लिए. So if it is a long run, then it will start from origin. That will be the long run total cost curve. If it is short run, then due to presence of fixed cost quantity 0 होने पे भी present होगा. It will start with a positive intercept. That will be short run total cost. ठीक है, तो ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मीनिंग बताना है, ग्राफिकली एक्सप्लेन कर दीजिएगा. और ये इफ पॉसिबल यूज एनी एग्जांपल व्हाट आर फिक्स फैक्टर लाइक रेंट, electricity expense etc. will be a variable cost, salary will be a variable cost. Then C part again just pattern similar है, part फिर से numerical है, calculate करना है. Calculate the income elasticity demand for good X from the following data. ये data यहाँ पे given है. Remember in this data, इस डेटा के अंदर आपको कैलकुलेट करना है इनकम इलास्टिसिटी डिमांड. तो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड कैलकुलेट करते समय वी फाइंड चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम कीपिंग ऑल अदर फैक्टर कांस्टेंट. तो रीड दिस टेबल केयरफुली. फर्स्ट इज अबाउट प्राइस, सेकंड इज क्वांटिटी डिमांडेड, थर्ड इज इनकम. तो अगर मुझे इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी है तो मुझे प्राइस को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. तो ध्यान से पढ़ना, ये 10 के प्राइस पे है, ये 20 पे है और ये 10 पे है. तो जो कांस्टेंट प्राइस वाला वैल्यू है वो कंसिडर करो. प्राइस 10, डिमांड 50 व्हेन इनकम इज 100. प्राइस स्टिल 10, डिमांड इज 20 व्हेन इनकम इज 400. दैट मीन्स हम इन दोनों को अगर यूज़ करते हैं तो प्राइस हमने सेम ले लिया. तो जो भी चेंज इन डिमांड होगा बिकॉज इट विल बी बिकॉज ऑफ चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर. तो आप इन दोनों टेबल को यूज़ करेंगे. इस 20 को इग्नोर करना, वो हम यूज़ कर सकते हैं जब इलास्टिसिटी या डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी होती. इस टेबल को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ. प्राइस ऑफ गुड एक्स, क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स एंड इनकम 10, 50, 100, 20, 40, 200, अगेन 10, 20 एंड 400. तो आप एक वैल्यू ये कंसिडर कर रहे हो, सेकेंड वैल्यू ये करना है. एंड वी हैव टू फाइंड इनकम इलास्टिसिटी. ये क्लास के अंदर भी रेगुलर बैच के अंदर देखिएगा, वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया. जब कभी आपको शेड्यूल दिया जा रहा है, टेबल इस फॉर्म में गिवन होगा, तो विच मेथड यू हैव टू अप्लाई? मिड पॉइंट मेथड लगाना है. ठीक है, अगर कोई इक्वेशन गिवन होता तो आप पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं, मतलब डिफ्रेंसिएशन का कंसेप्ट. शेड्यूल गिवन होगा तो हमेशा मिड पॉइंट मेथड. तो इनकम इलास्टिसिटी विल बी चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन इनकम. इनकम को m से डिनोट कर लिया, इनटू m1 प्लस m2 अपॉन q1 प्लस q2. ठीक है, तो चेंज इन डिमांड क्या लेना है मुझे? 50 to 20. सो चेंज इन डिमांड विल बी, क्वांटिटी पहले 50 थी, अब ये 20 है, सो दैट विल बी -30 अपॉन चेंज इन इनकम 100 to 400, सो इट विल बी 300. m1 plus m2 100 and 400 500 and q1 plus q2 50 and 20 70. ठीक है, ये वैल्यू कैलकुलेट करिए. इनकम इलास्टिसिटी डिमांड हो गया. और इनकम इलास्टिसिटी अब आप साथ में बताना वेदर x इज इन्फीरियर और नॉर्मल गुड. सो एज इनकम इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस. सो
माइनस साइन आ रहा है, सिंस इनकम इलास्टिसिटी इज नेगेटिव देयरफॉर गुड इज इंफीरियर। ठीक है, कैलकुलेशन के एक आई थिंक अगर यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं तो भी गलत हो सकता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में अगर कभी प्राइस इलास्टिसिटी निकालनी होती तो उसके लिए आपको सेम इनकम दिया होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम इनकम इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज दो सिमिलर प्राइस के इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मतलब आप इन दोनों को अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इन दोनों में इनकम भी डिफरेंट हो रही है और प्राइस भी डिफरेंट हो रहा है। देन वी कैन नॉट बी श्योर वेदर चेंजेस बिकॉज ऑफ इनकम और वेदर चेंजेस बिकॉज ऑफ प्राइस। So this was a 3 question. Fourth A says a country imposes 3% digital tax. A country imposes 3%. Read this one. A country imposes 3% digital tax on revenue earned by a local internet search engine company. The company responds by reducing the hourly wage rate of all the employees. remember इसका कोई यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ क्वेश्चन को प्रेजेंट करने के लिए दिया जा रहा है। The company responds by reducing hourly wage rate to all the employees. Using indifference curve analysis, show how the worker will respond to reduction in their wage rate. Will your analysis depend upon whether leisure is normal or inferior good? मतलब वेज कम होने का इम्पैक्ट वर्क पे क्या होगा ये समझाना। हाउस होल्ड का सेकेंड एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ हायर वेज रेट ऑन वर्क। तो यहाँ पे हायर वेज रेट नहीं है, यहाँ पे लोअर वेज रेट है। तो जो रीडिंग में गिवन है उसको कन्वर्स करके यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वेज रेट रिड्यूस हो रहा है एंड वेदर यू आंसर डिपेंड अपॉन वेदर लेस इज नॉर्मल और इन्फीरियर। नाउ इन दिस क्वेश्चन wage has been reduced. So when wage will reduce, there will be change in work and it will be because of two reasons, substitution effect and income effect. ठीक है, ध्यान से रेफर कर लेना इस एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो जो एप्लीकेशन वाली क्लास है उसके अंदर देख सकते हैं उसे। और पैरेलल में एक डायग्राम आप यहाँ प्रेजेंट करेंगे, एक्सेस के ऊपर लेज़र, वर्टिकल एक्सेस पे इनकम। सो ऑलरेडी देयर इज अ गिवन वेज रेट, बेस्ड अपॉन दैट दिस टेंजेंसी विल डिटरमाइन हाउ मच इज लेज़र एंड हाउ मच इज वर्क। इस डायरेक्शन से लेज़र मेजर होता है, अपोजिट डायरेक्शन से वर्क। दिस इज द टोटल टाइम का एंडोमेंट। नाउ देखिए, सिंस वेज रेट हैज़ बिन रिड्यूस सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट लॉजिक। तो जो रीडिंग के अंदर है या जो क्लास के अंदर एक्सप्लेन है उसमें कह रहे हैं वेज रेट इंक्रीज होगा देन लेजर विल बिकम एक्सपेंसिव, सो वर्कर विल हैव लेस लेजर एंड मोर वर्क, बट हेयर वेज रेट रिड्यूसेस, सो यू कैन से दैट लेजर becomes less expensive, therefore leisure will increase. On the other hand, when wage rate reduces, workers income will also reduce. So when income will reduce, if leisure is normal good, तो नॉर्मल गुड होगी तो इनकम और गुड का जो डिमांड होगा वो सेम डायरेक्शन में चेंज होगा। तो एज इनकम रिड्यूसेस लेजर विल रिड्यूस, बट फॉर दैट पर्पस लेजर हैज़ टू बी अ नॉर्मल गुड। नाउ they are working in the opposite direction. So if substitution effect is greater than income effect, एक बार अगर वेज रेट कम हो रहा है तो आप इस डायग्राम के अंदर लाइन को फ्लैटर ड्रॉ करना। ठीक है, वेज रेट इस लाइन का स्लोप है, सो एज वेज रेट रिड्यूसेस लाइन विल गेट फ्लैटर। इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, यहाँ कंडीशन बनेगा फर्स्ट, इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर, इफ इट इज ग्रेटर देन लेजर विल इंक्रीज एंड वर्क विल रिड्यूस। लेजर इंक्रीज करना और वर्क डिक्रीज करना है। तो लेजर इंक्रीज का मतलब टेंजेंसी किधर बनाना होगा, इस डायरेक्शन में मैंने कहा लेजर है, तो लेजर अगर इंक्रीज करना है तो पॉइंट फिर इधर बनना है, लेजर विल इंक्रीज वर्क विल रिड्यूस, फर्स्ट कंडीशन।
वो एक डायग्राम हो गया। सेकंड, इफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज लेस एंड इनकम इफेक्ट इज मोर, तो इनकम इफेक्ट मोर होगा देन लेजर विल रिड्यूस एंड वर्क विल इंक्रीज, तो फिर आपकी टेंडेंसी फिर इधर होगी। और थर्ड केस भी ले सकते हैं, अगर दोनों इफेक्ट बराबर हो गए तो नेक्स्ट पॉइंट ये बन जाएगा। ये हो गया जब हमने उसे नॉर्मल कंसिडर किया है। अगर लेज़र को इन्फीरियर कंसिडर करते हैं, अगर लेज़र इन्फीरियर होगा तो इनकम के रिड्यूस होने पे लेज़र विल इंक्रीज, तो इनकम इफेक्ट की वजह से भी लेज़र बढ़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी लेज़र बढ़ रहा है, सो लेज़र विल अनएम्बिगुअसली इंक्रीज एंड वर्क विल रिड्यूस। तो फिर आप सिर्फ राइट साइड ही बनाओगे। अगर हमने लेज़र को इन्फीरियर लिया है तो सिर्फ ये वाला पॉइंट होगा, अगर नॉर्मल ले रहे हैं तो तीनों पॉसिबिलिटी है, और लेज़र को अगर हमने इन्फीरियर लिया है देन लेज़र विल इंक्रीज अनएम्बिगुअसली एंड वर्क विल रिड्यूस। ठीक है, तो इसमें सिंस इट इज़ 5 मार्क्स क्वेश्चन, आई विल नॉट सजेस्ट कि 4-5 डायग्राम आप ड्रॉ करो। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन मैनेज, नो प्रॉब्लम। बेटर होगा हर केस के लिए आपने अलग अलग डायग्राम ड्रॉ कर दिया, अदरवाइज मेन कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दीजिए और किसी एक सिंगल डायग्राम को एक्सप्लेन कर देंगे नॉर्मल गुड के लिए, और एक डायग्राम आप बना सकते हैं इफ़ इट इज़ एन इन्फीरियर गुड। क्लियर? तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं था, उस एप्लीकेशन को यूज़ किया गया, हाउस होल्ड वाले एप्लीकेशन को। यूजुअली वहाँ जो 3 एप्लीकेशन है उनमें से कोई एक एप्लीकेशन रहता है, मतलब ऑल गुड्स आर गिवन गुड्स, मतलब डिमांड का क्या हमेशा नेगेटिव स्लोप होगा, पहला एप्लीकेशन है। सेकंड, इफेक्ट ऑफ हायर वेज रेट ऑन वर्क, और थर्ड, इफेक्ट ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स। तो उन तीनों एप्लीकेशन में यूजुअली 1 or 2 एप्लीकेशन इज ऑलवेज देयर। देन फोर्थ बी इज अगेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। The demand curve for metro rides for a female employee Vidhi is given as, so just copy the demand equation, 50 minus 1 by 3Q। ठीक है, क्वेश्चन के जो सब पार्ट्स हैं उसमें 3 सब पार्ट है क्वेश्चन के, तो ध्यान से तीनों सब पार्ट को पढ़ेंगे और 1 by 1 सॉल्व करना है। पहला काम ये करो, जस्ट जो डिमांड फंक्शन गिवन है उसे आप ग्राफिकली प्लॉट कर दीजिए। I think plotting, you know, if price will be, if quantity will be 0, Q की जगह 0 लिखते हैं, यहाँ क्वांटिटी है यहाँ प्राइस है। अगर क्वांटिटी 0 लिखते हैं तो P 50 हो जाएगा, क्वांटिटी 0 करते हैं तो प्राइस विल बी 50, और P अगर 0 लिखोगे तो 50 इक्वल टू 1 by 3Q, Q विल बी 150, ये पॉइंट हो जाएगा 150 का। ये डिमांड कर्व की ये प्लॉटिंग होगी। Now first part of the question says, suppose the supply of metro service she avails is perfectly elastic at ₹30 per ride between 2 destination. Supply is perfectly elastic, तो perfectly elastic supply कर्व का शेप क्या होगा, वर्टिकल या ऑरिजेंटल? वर्टिकल हो गया तो perfectly inelastic हो गया, perfectly elastic at 30, तो यहाँ मार्क करना है 30, और ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व। फाइंड द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ राइड, इस क्वांटिटी को कैलकुलेट करना है, एंड द कंज्यूमर सरप्लस। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो ये मार्केट का इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो इस इक्विलिब्रियम को कैलकुलेट कर सकते हैं। पी की जगह आप यहाँ 30 लिख दो, ये पहला डिमांड फंक्शन हो गया, सेकंड सप्लाई कर्व हो गया। इक्वेट करेंगे तो 50 माइनस 1 by 3Q इज इक्वल टू 30, यहाँ से Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 1 by 3Q is equal to 20, so quantity will be 60, ये हो गया 60। सिर्फ फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें के अंदर सब बहुत सारे सब पार्ट्स यूजुअली रहते हैं। फाइंड द इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ राइड, वो निकाल दिया आपने। कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस इज दिस एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस, तो कंज्यूमर सरप्लस उस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज दिस 60, हाइट इज 20। ठीक है, 600, कंज्यूमर सरप्लस विल बी 600। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, मतलब 5 मार्क्स में इतने सब पार्ट्स हैं, ये क्वेश्चन है, मतलब हार्डली वी कैन से 1 or 2 मार्क्स फॉर दैट। सेकंड, ये इसका फर्स्ट सब पार्ट है। सेकंड है
द गवर्नमेंट प्रपोजेस टू मेक मेट्रो राइड फ्री फॉर ऑल वुमेन. Calculate the new equilibrium rights. Free for all women. Free for all women means price will be now 0. So when price will be 0, how much is the quantity? Quantity will be 150. So number of ride will be 150. Number of ride पहले 60 थे, अब number of ride 150 हो जाएगा. Calculate the consumer surplus she now enjoys. तो अभी सेकेंड पार्ट में अगर फ्री राइड है तो ये 0.50 लिखना है, ये 150 हो गया, प्राइस 0 हो गया, तो प्राइस के ऊपर का एरिया मतलब इंटायर ट्रायंगल निकाल लीजिएगा. सो नाउ कंज्यूमर सरप्लस विल बी हाफ इंटू 150 इंटू 50. सो सिंस प्राइस हैज रिड्यूस्ड, in fact there is no price, so entire area will be the consumer surplus. So this is first sub part, second sub part, and that third sub part में क्वेश्चन कर रहा है इफ ₹30 रीपे इन द टोटल कॉस्ट पर राइड टू द सप्लायर ऑफ मेट्रो सर्विस. मतलब जो मेट्रो सर्विस का सप्लायर है उसके लिए ₹30 उसका कॉस्ट आ रहा है. डू यू थिंक दैट एक्स्ट्रा टिप इज इकोनॉमिकली जस्टिफाइड? तो एक्स्ट्रा टिप इज नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड. एनी क्वांटिटी बियॉन्ड इक्लम इज नॉट इकोनॉमिकली जस्टिफाइड. ठीक है, तो ये तीनों पार्ट मिला करके आप ये फोर्थ क्वेश्चन के आंसर में लिख रहे हैं. एंड फोर्थ क्वेश्चन के इनफैक्ट ये दो पार्ट ही था, फोर्थ ए एंड बी. बी का वेटेज ज़्यादा था, इस क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. ठीक है, इसके सब पार्ट्स ज़्यादा हैं. सो यू कैन मूव टू दी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. लास्ट वाले क्वेश्चन यूजुअली मार्केट स्ट्रक्चर के मिलेंगे. तो फिफ्थ ए इज डिफाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रीडिंग नोट्स के अंदर गिवन है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रीडिंग के अंदर भी डिफाइंड है. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज बेसिकली प्राइसिंग प्रैक्टिस यूज्ड बाय मोनोपोलिस्ट टू चार्ज डिफरेंट प्राइस फॉर सिमिलर गुड्स फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स. एंड इट कैन बी ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. ऑल द इंट्रोडक्टरी माइक्रो में आपसे सिर्फ फर्स्ट डिग्री की बात की गई है. कैन परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन रिमूव द डेड वेट लॉस? यस, परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कैन. सो इफ वी ड्रॉ द डिमांड कर्व तो यूजुअली मार्जिनल रेवेन्यू बिलो होता है, बट ये जब आप लिखते हैं तो पी क्यू टी आर और एम आर का इंटरप्रिटेशन ऐसे करना है. At price 10 1 quantity, to sell more quantity price has been reduced, to sell more further reduction. Total revenue 10, ये 18 24, marginal revenue will be 10 but now addition will be 8, then addition is 6. तो MR की जो वैल्यू है वो डिमांड कर्व के नीचे होगी. और अगर हमने सिंप्लीफाई करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट कांस्टेंट लिया है तो MC इक्वल टू MR विल बी दिस क्वांटिटी. This area is consumer surplus, this one is producer surplus, and this area is in fact a dead weight loss. ये यूनिफॉर्म प्राइसिंग में है. परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन में डिमांड कर्व इटसेल्फ विल बी द मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, वो लाइन ही मार्जिनल रेवेन्यू की लाइन हो जाएगी. प्राइस क्वांटिटी यहाँ से TR और MR कैलकुलेट करते हैं तो 10 के प्राइस पे 1, सेकेंड क्वांटिटी के लिए प्राइस 9 है, नॉट फॉर बोथ. यहाँ पे बोथ हो गया, 9 इंटू 2 18 लिखा है, यहाँ 9 इंटू 2 नहीं करना है. 10 एंड 10 प्लस 9 19, देन मार्जिनल रेवेन्यू इज 10 एंड 9. तो ये प्राइस का कॉलम और MR का कॉलम दोनों सेम होगा. तो डेड वेट लॉस यहाँ नहीं होता, इनफैक्ट इंटायर एरिया विल बी प्रोड्यूसर सरप्लस. सो परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन कैन एलिमिनेट डेड वेट लॉस. Fifth B is easy. Why do competitive firms stay in business if they make zero profit? Remember, zero profit long run के अंदर होता है. Production is always occurring in the short run. They make profit always in the short run. Production is in fact short run because we cannot produce without fixed factor. And if we are using some fixed factor, we are operating in the short run. So even when we know that in long run our profit will be zero. So since production occurs in short run, so we continue to operate knowing that in the long run the profit will reduce to zero. देन द सी पार्ट इज़ न्यूमेरिकल. और ये इंटरनेशनल ट्रेड का जो एप्लीकेशन है यूनिट नंबर 2 में,
उसके एप्लीकेशन के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है टी शर्ट एंड ब्राउनीज जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए 10, 10, 18 और 10। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन गिवन है एंड दीज आर, आपको रीड करना केयरफुली। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ 2 कमोडिटीज पर वर्कर पर डे, मतलब पर वर्कर पर डे दे प्रोड्यूस दिस मच यूनिट। तो ये जितने भी इंफॉर्मेशन है ये यूनिट में है। इट इज़ नॉट लाइक दैट इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट हाउ मच टाइम इज बीइंग टेकन, तो ये ऑलरेडी यूनिट के अंदर गिवन है। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन बेटर टू ड्रॉ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो जो फर्स्ट कमोडिटी हो गया वो एक्स एक्सिस पे लिख दिया, सेकेंड कमोडिटी वाई एक्सिस पे। जापान के लिए अगर ड्रॉ करते हैं तो 10 और 18, मार्केट 10 एंड 18। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर ड्रॉ करना है तो 10 और 10 इक्वल इंटरसेप्ट दोनों तरफ हो जाएगा। ठीक है, ये काम करके नेक्स्ट में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट कर लो और फिर उसको टेबल में शो कर दीजिएगा। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टी शर्ट, ठीक है, ये जापान के लिए निकाल रहे हैं, मतलब इस लाइन का स्लोप होगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस 18/10 1.8। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ब्राउनी इज जस्ट इनवर्स ऑफ दैट, 10/18 हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑस्ट्रेलिया में 10/10, तो ये दोनों के लिए 1 रहेगा। आफ्टर दैट एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टेबल ड्रॉ कर लेंगे। टेबल ड्रॉ करते समय यहाँ टी शर्ट, ब्राउनीज जापान और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रेजेंटेशन में थोड़ा नीट रखेंगे। ठीक है, तो ये 10 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गया, यहाँ पे 1.8 यहाँ लिख दीजिएगा और ब्राउनीज के लिए जस्ट इनवर्स, सो इट विल बी 10/18। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ये 1 है तो दोनों के लिए 1 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा जा रहा है ड्रॉ दी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो आपने ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बना लिया। इसमें एक इन्फॉर्मेशन और है दैट ईच कंट्री हैज़ 1 मिलियन वर्कर, तो ये 1 वर्कर के लिए गिवन है, तो 1 मिलियन वर्कर है, तो ये 1 वर्कर अगर ये प्रोड्यूस करेंगे तो मिलियन से मल्टीप्लाई कर दिया, वो 10 मिलियन हो जाएगा, ये 18 मिलियन हो जाएगा, ये 10 मिलियन। विच कंट्री हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज जो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है एक दिन के अंदर उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। तो जापान टी शर्ट 10 और 10, या एब्सोल्यूट एडवांटेज दोनों में से किसी के पास नहीं होगा। ब्राउनीज़ के लिए 18 और 10, तो ऑस्ट्रेलिया के पास ब्राउनीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, रादर यूनिट है, 2 गुड्स पर वर्कर पर डे, कितने यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक दिन में जो ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसके लिए होगा। जापान के पास ब्राउनीज़ में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, टी शर्ट में दोनों के लिए इक्वल है। कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये कर दिया। व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ट्रेड, हु विल एक्सपोर्ट व्हाट, तो टी शर्ट का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहाँ पे कम हो गया 1, तो ऑस्ट्रेलिया विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन टी शर्ट एंड जापान विल हैव कंपैरेटिव एडवांटेज इन ब्राउनीज। सो ऑस्ट्रेलिया विल एक्सपोर्ट टी शर्ट एंड इम्पोर्ट ब्राउनीज, जापान विल एक्सपोर्ट ब्राउनीज एंड इम्पोर्ट टी शर्ट। ठीक है, वो स्टेटमेंट में लिख देना फाइंड करने के बाद। कई सारे एग्जाम्पल क्लास के अंदर डन है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वाली क्लास देखिएगा सेकेंड यूनिट के अंदर। ठीक है, तो अगेन इसके पार्ट्स थे, थोड़ा केयरफुली कैलकुलेशन का सिर्फ ध्यान रखना, यहाँ पे रीड करते समय ध्यान दीजिएगा। वो यूनिट अगर है मतलब हाउ मच यूनिट दे प्रोड्यूस, तो डायरेक्टली उस यूनिट को लिख देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे गिवन है, अगर आवर में गिवन है तो जस्ट वो अपोजिट होता है, मार्क करते हैं मतलब स्लोप निकालते हैं। नाउ कम टू दी लास्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक पैटर्न आप तक कभी तक आप नोट कर रहे होगे। हर क्वेश्चन में इनिशियल के जो 1 और 2 क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करने वाले हैं, एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, और एक क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए, और आपके पास एक क्वेश्चन का चॉइस है। कभी कभी ओल्ड क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ 7 क्वेश्चन होते थे, बट वहाँ भी फर्स्ट क्वेश्चन फिर कंपल्सरी होता था। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ चॉइस पैटर्न सेम है।
सिक्स्थ ए में अगेन डिराइव द डिमांड कर्व फॉर लेबर इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट, व्हाट कॉजेज लेबर डिमांड कर्व टू शिफ्ट. डिराइव द डिमांड कर्व फॉर लेबर इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट. तो इनपुट मार्केट का क्वेश्चन यूजुअली लास्ट वन होता है. वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज द डिमांड कर्व. ठीक है, वीएमपी डिमांड कर्व होता है. कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मली आप ऐसे भी उसको समझ सकते हो. प्रॉफिट को अगर प्राइस से लिख रहे हैं तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी, और कॉस्ट में क्वांटिटी बनाने के लिए मुझे लेबर और कैपिटल चाहिए. सो इट विल बी लेबर कॉस्ट, वेज इनटू लेबर, रेंट इनटू कैपिटल. लेबर का डिमांड कब निकालना है तो आप इस प्रॉफिट के फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू लेबर डिफरेंशिएट करते हैं, देन इक्वेटेड टू जीरो. कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो प्राइस कांस्टेंट है. ठीक है, पी की वैल्यू कांस्टेंट है. डिमांड फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन को लेबर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और कैपिटल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा. यहाँ सिर्फ डेरिवेटिव रह जाएगा वेज कांस्टेंट नंबर, एल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया. और प्रोडक्शन फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे लेबर के रिस्पेक्ट में, मतलब ये हमने डी क्यू बाई डी एल किया, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन लेबर, सो दैट विल बी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इनटू प्राइस हो गया, तो ये वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट हो गया. देयरफॉर वीएमपी इज इक्वल टू वेज. ये हो गया डेरिवेशन. ग्राफ में ड्रॉ करना है तो वीएमपी की लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा. एट एनी पर्टिकुलर वेज profit get maximized when wage is equal to VMP. So this is the demand for labor. If wage is higher, then demand for labor will be less. ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करना, ये डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन है. आप नोट में जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखिए. VMP जो और जो टर्म यूज़ करो आप प्रेफरेबली उसको डिफाइन कर दें एग्जैक्टली, तो दैट विल बी बेटर. And second is why monopoly is marginal revenue less than the price of the good. Marginal revenue प्राइस से कम क्यों होता है मोनोपोली में? Logic is you can understand by this table. To sell one unit, price charge was 10. So revenue was 10, MR was 10. To sell more quantity, price was reduced. But it is not reduced only for the second unit. It is reduced for both the unit. That means initially for this one unit, seller was getting 10 rupees. Now to sell more quantity, price has been reduced for both the unit. So by selling second unit he is getting 9, but on the first unit also he is getting 1 rupee less. So 9 minus 1, that will be 8. तो 9 into 2 करके हमने 18 लिखा है, और चेंज से फेट का ही होगा, it is not 9. So since in order to sell more quantity, monopolist will have to reduce price, and price get reduced for all the unit. Therefore marginal revenue will be lower than the price. तभी आप डिमांड का जब ड्रॉ करते हैं तो below that you draw marginal revenue line, और show the profit maximizing level of output and price for a monopolist. You can take marginal cost constant भी ले सकते हो और पॉजिटिव स्लोप भी ले सकते हैं. M से इक्वल टू MR is profit maximizing quantity, price is determined from the demand curve. So this is profit maximizing price, this is profit maximizing quantity. ठीक है, ग्राफिकली ये शो कर दिया, लॉजिक ये बताना है. So this was question number 6B, and the last question is again a numerical, and it is very easy numerical. ऐसे क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. आप करना क्या है, आपको टेबल जो इस फॉर्मेट में गिवन है उसको अपने ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए. क्वांटिटी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है, और प्राइस गिवन है 7. सो आई कैन प्रेजेंट इट इन दिस फॉर्म. क्वांटिटी, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, वहाँ से मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेंगे, और नेक्स्ट कॉलम बना लिए प्राइस का. क्लियर? सो क्वांटिटी 0, 1, 2, 3, 6 तक गिवन है, 4, 5, 6. Fixed cost is given as 12, so it will remain same. Variable cost is 0 for 0 unit, then 5, 9, 14, 20, 28 and 38. ऐड करके टोटल कॉस्ट लिख दीजिए 12.
17, 21, 26, 32, 40 एंड 50। यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो मार्जिनल कॉस्ट 0 यूनिट के लिए ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। फिर एडिशन टू टोटल कॉस्ट या एडिशन टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सो इट विल बी 5, 4, then 5, 6, then 8 and 10 और प्राइस गिवन है 7। ठीक है, यूजुअली जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी होती है वहाँ MR इक्वल टू MC होता है। प्राइस कांस्टेंट है, मतलब वो वैल्यू MR भी है, प्राइस और MR दोनों सेम हो गए। सो MR इज ग्रेटर ईयर, ग्रेटर ईयर, ग्रेटर, ग्रेटर और यहाँ पे लेस हो गया, तो ये हमारा कट ऑफ पॉइंट हो जाएगा। इक्वालिटी का साइन नहीं आ रहा, तो जब तक MR की वैल्यू ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट होगी दैट मच क्वांटिटी विल बी प्रोड्यूस। क्वांटिटी प्रोड्यूस विल बी 4, प्राइस 7 गिवन है, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा प्राइस इंटू क्वांटिटी 7 इंटू 4, 28 डन। एंड 4 यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट हो गया 32, टोटल कॉस्ट इज 32। सो प्रॉफिट is difference of revenue and cost, so it is 28 minus 32 minus 4, so there is a loss of 4 rupees. Will the firm operate or shut down? So that decision will depend upon operating cost, operating profit, and operating profit is TR minus TVC. So TR is 28 और 4 यूनिट के लिए वेरिएबल कॉस्ट है 20, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ 8। सो सिंस देयर इज अ पॉजिटिव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फर्म विल प्रेफर टू ऑपरेट, इट विल नॉट शट डाउन। ठीक है, उसको कंसेप्ट को आपने बस एक्सप्लेन कर दिया। मतलब टू ऑपरेट फर्म मस्ट बी एबल टू रिकवर द वेरिएबल कॉस्ट। इफ मोर देन वेरिएबल कॉस्ट इज रिकवर्ड दैट मीन्स सम पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इज आल्सो बीन रिकवर्ड। क्लियर? तो ऐसे प्रेजेंट करना है और इसको जो लॉजिक है मतलब हार्डली रीजनिंग बता देना है कि हमने ये क्वांटिटी क्यों चूज़ कर रखा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन को बताइएगा। तो दीज वर द 6 क्वेश्चंस। तो आई थिंक किसी क्वेश्चन में कोई ग्रेटर लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं थी, बट इन एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट वन पार्ट वाज न्यूमेरिकल। सो 5 यू कैन से न्यूमेरिकल पार्ट इज देयर। हर क्वेश्चन के अंदर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड भी है और न्यूमेरिकल भी है, अप्रोच ऐसा ही रहता है। डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं होती है, आपको प्रेजेंट वहाँ सही करना है और मिस्टेक नहीं करना है। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी ज़्यादा नहीं होती। डिफ़िकल्टी सब्सिक्वेंट सेमेस्टर के लिए सेम 2 के अंदर भी मैक्रो में थोड़ी हो जाएगी और सेम 3 के अंदर मतलब फर्स्ट ईयर के कंपेरिजन में सेकेंड ईयर की डिफ़िकल्टी काफ़ी ज़्यादा होती है, सेम 3 का भी और सेमेस्टर 4 का भी। तो आई होप ऑल जितनी भी क्लासेस अभी तक अब जो भी क्लासेस यूनिट हैं सबकी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप उस लेक्चर्स को कम्प्लीटली देख लेंगे, पहला काम। सेकंड, जो नोट्स वाले सेक्शन में अपलोडेड है वो कम्प्लीटली देख लीजिए। थर्ड, जो रीडिंग के बैक के क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन वो अपलोडेड है। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके डिस्कशन वो अपलोडेड है। ठीक है, एक आध 1-2 ईयर ऑफ अगर ना भी हो तो कम्प्लीटली मोर और लेस अप्रोच ऐसे ही रहता है क्वेश्चन का। तो लास्ट 4-5 ईयर का अगर आप क्वेश्चन देख लो एंड आई थिंक दैट विल बी इनफ। ठीक है, वैसे भी ओपन बुक एग्ज़ाम होना है, घर से आपको एग्ज़ाम देना है, तो इस अपॉर्चुनिटी में डिफ़िकल्टी मतलब इन द सेंस ये रहती है कि अगर कोई इक्वेशन या फंक्शन वहाँ डिफरेंट आ रहा है तो, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप जहाँ तक सेमेस्टर 1 की जितने भी रिक्वायरमेंट है आपकी वो पूरी हो रही है। सो विल कंटिन्यू और इन नेक्स्ट सेमेस्टर फॉर्मेट सेमेस्टर 2 का, 3 का, 4 का सबका वैसे ही रहता है। मतलब कम्प्लीटली जो जितने भी क्लासेज होंगे टॉपिक वाइज होगा। अगर कभी कोई चेंज आता है तो उसका हमेशा में ध्यान रखते हैं कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसकी अकॉर्डिंगली क्लास रिकॉर्ड होती है। तो लेक्चर्स कंप्लीट मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, सॉल्यूशन है और प्रीवियस ईयर के डिस्कशन। ठीक है, ये पैटर्न हर सेमेस्टर में भी फॉलो एट प्लेसमेंट। ठीक है, चाहे वो माइक्रो का पेपर हो या MME का पेपर हो, स्टैट्स का पेपर हो या मैक्रो का पेपर हो या इकोनॉमेट्रिक्स का पेपर हो। ठीक है, सो थैंक यू।